Hello everybody, today we'll start the laws of chemical combination. The first law is law of conservation of mass. According to this law, the total mass of reactant is always equal to total mass of the products. Or we can say that mass can neither be created or nor be destroyed in a chemical reaction. किसी भी chemical reaction में ना ही mass को हम create कर सकते हैं ना ही destroy कर सकते हैं. And for proving the law of conservation of mass, जो भी हम एक chemical equation लेंगे बेटा, that must be balanced. वो balanced form में होने चाहिए. अगर वो balanced नहीं है, we have to balance the equation. ये मैंने फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ली. यहाँ पे हमारे पास यू कैन चेक दैट दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी इन द बैलेंस फॉर्म. ठीक है, हेयर कार्बन हैज़ वन एटम इन द प्रोडक्ट दैट हैज़ ऑल्सो वन एटम इन द reactants. Oxygen has two atoms in the products. There are also two atoms. That means it is a balanced chemical equation. अगर हम यहाँ पे टोटल मास reactant का फाइंड आउट कर सकते हैं तो टोटल मास ऑफ reactants कितना आएगा हमारे पास. That is equal to carbon has mass 12 plus 2 multiplied by oxygen has mass 16. It comes to be 12 plus 32 is equal to 44 mu or gram you can say. Then after that total mass of product इसके लिए 12 plus 2 multiply atomic mass of oxygen is 16. That also comes to be 44 mu or united mass. That means it is clear that here total mass of reactant is equal to total mass of products. That means the law of conservation of mass is proved here. The second one is law of definite proportion. Law of definite proportion is also called as law of constant proportion. According to this law is given by J.L. Proust. That's why this is also called as Proust law, and law of conservation of mass is given by Antoine L. Lavoisier. That's why that is also called as Lavoisier law. According to this law, when two or more elements combine to form a compound, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, then ratio of their masses is always constant in that compound. Always constant, or you can say that they wear a fixed ratio. For example, water की formation हम लेते हैं. Water, as we know, water is a compound which is formed by two elements, hydrogen and oxygen. There are two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. अगर हम इसके मास की रेशो ले लेते हैं, then hydrogen has mass 1, 2 multiply by 1 multiply by oxygen has mass 16. Ratio becomes 2:16. By cancel out it will form 1:8. दैट मीन्स वाटर तभी फॉर्म होएगा जब हमारे पास जो है रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या होएगी, 1:8. और ये हमारे पास ये जो रेशो है दैट शुड बी कांस्टेंट, वो हमेशा ही कांस्टेंट होनी चाहिए. अगर ये रेशो नहीं आती है हमारे पास फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फॉर्म नहीं करेगा. फिर यही कंपाउंड में सबसे स्पेशल बात क्या है, वाटर में रेशो ऑलवेज जो है 1:8 ही रहेगी, चाहे सोर्स ऑफ वाटर कोई भी है, इधर इट इज़ फ्रॉम पॉन्ड, इट इज़ फ्रॉम रिवर, और चाहे वो सी वाटर है. वाटर हैज़ रेशो 1:8. अगर ये रेशो चेंज हो जाती है तो कंपाउंड वाटर जो है फॉर्म नहीं हो पाता है. तो दैट इज़ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. द थर्ड लॉ इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जैसे इसका नेम है मल्टीपल, दैट मीन्स हमारे पास कोई ना कोई वर्ड हमारे पास मल्टीपल से रिलेटेड आएगा. तो इसका जो है हम जो है फॉर्मेशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. द एग्जांपल इज, लेट अस टेक टू एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन.
बाय द कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बने, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। लाइक हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर कर सकती है। तो यहाँ पे जो है किस एलिमेंट का मास सेम है, दैट इज़ फॉर कार्बन, बिकॉज कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में एक एटम है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड में भी एक एटम है, दैट मीन्स इसका मास क्या है, फिक्स्ड है। उसको छोड़ के जो नेक्स्ट एलिमेंट होएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम, यहाँ पे दो एटम, उसकी रेशो क्या आएगी, इन सिंपल रेशो में आएगी या इन सिंपल होल नंबर आएगी। तो ऑक्सीजन और O2 का अगर हम रेशो देखें तो 16:32, बाय कैंसलिंग आउट इट विल फॉर्म 1:2। So that is the law of multiple proportion. When two elements combine to form two or more compounds, then one element which has a fixed mass will combine with the other one which have a ratio in the simple whole number. That is the law of multiple proportion. When दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो एक एलिमेंट जो फिक्स मास में है उसको छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट होंगे, यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है, उनके मास की जब हम रेशो लेंगे दैट अपीयर्स इन सिंपल होल नंबर रेशो. That is the law of multiple proportion. The fourth one is law of reciprocal proportion. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन है दैट इज समवट ट्रिकी, थोड़ी सी ट्रिकी है. इसमें क्या होता है, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, व्हेन टू एलिमेंट्स A and B will combine with third element C separately, then a ratio of their masses is either same or multiple when A and B directly combine with each other. Let us discuss this definition with the help of example. यहाँ पे क्या बोला, A and B टू एलिमेंट्स हैं. जब ये तीसरे एलिमेंट C के साथ सेपरेटली जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके मासिस की रेशो, तो A को हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, लेट A बी कार्बन, A को कार्बन कंसिडर कर दिया, B को ऑक्सीजन कंसिडर कर दिया एंड C को हमने हाइड्रोजन कंसिडर कर दिया. तो बोला जब A और C सेपरेटली रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ CH4 होएगा. B जब सेपरेटली जो है C के साथ कंबाइन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर होएगा. अब इन दोनों कंपाउंड में देख लीजिए विच एलिमेंट इज सिमिलर, दैट इज हाइड्रोजन, लेकिन मास सेम नहीं है, दैट उसको मास को सेम करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Now here 4 hydrogen atom are there and in water now there are 4 hydrogen atom. हाइड्रोजन का मास जो है क्या हो गया, that becomes constant. तो हम रेशो ले लेंगे जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट रह गए. यहाँ पे रह गया कार्बन, कार्बन एक ही एटम है तो कार्बन का एटॉमिक मास जो है दैट इज 12. ऑक्सीजन 2 है बिकॉज यहाँ से 2 से ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई हुई है, रेशो बिकम्स 32. ये सेम होएगी या मल्टीपल में व्हेन A एंड B डायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर. कार्बन और ऑक्सीजन हम डायरेक्टली कंबाइन करेंगे, दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ पे इनकी रेशो ले लीजिए, कार्बन हैज़ रेशो 12 एंड ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन द रेशो इज़ 32. ये देखिए, आप देखेंगे कि रेशो क्या आ गई हमारे पास, सेम आ गई. तो हमारे पास जो लॉ है वो पूरी तरह से एप्लीकेबल हो रहा है. व्हेन टू एलिमेंट्स A एंड B combine with the third element C separately, then ratio of their masses is either same or multiple when A and B directly combine with each other. अगर हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेंगे तो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा मल्टीपल वाली रेशो का.
Our next topic is Dalton atomic theory. It was given by Dalton, John Dalton. The first point is all matter is made up of very small particles called atoms. हर एक मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से जो है फॉर्म हुआ होता है, जिसको क्या बुलाता है, दैट आर कॉल्ड एज एटम. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. एटम इतना छोटा पार्टिकल है जिसको ना ही क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता. थर्ड वन इज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can take part in a chemical reaction. The next one is atoms of same element are same or similar. They are similar in their sizes, they are similar in their masses. Next point is atoms of different elements are different. Like हमारे पास कार्बन के एटम अलग तरह के होंगे, ऑक्सीजन के एटम अलग तरह के होंगे. दैट्स वाई हम ये जो है स्टेटमेंट यूज करते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. The next one is atom of different element combine in a definite ratio to form the compound. And the last point is in a compound the relative number and kinds of atoms are fixed. एक कंपाउंड में कितने हमारे पास नंबर होने चाहिए और कितने काइंड के जो है हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, वो हमेशा क्या होता है, दैट इज ऑलवेज फिक्स. दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. They are also known as postulates of Dalton atomic theory.